Hello, my dear students. I hope you all are fine. Welcome back. Today we'll take a new chapter from civics only. That is chapter 5th, Judiciary. Okay, back to back I am taking this chapter so that I know you all remember that chapter and charts from last chapter, so it will be easier for you to grasp this knowledge very quickly. Let's see what we are going to do today. I'll give you an introduction, then we'll understand what is judiciary. Understood? So this chart we have seen in last chapter also. Last chapter में तो डिटेल में भी फ्लो चार्ट्स बने थे. यहाँ पे right now you just have to remember there are three branches of government: executive branch, legislative branch, and judicial branch. Right? What does executive branch do? It executes the laws. It brings up new bills. Legislative branch, it makes laws and it controls and guides the executive branch, right? And third is judicial branch. Judicial branch का काम क्या है? Law and order को maintain करना. They have to see if there is a fight between these two branches, then also it will only resolve. It will also see कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज तो नहीं बना रही कि कॉन्स्टिट्यूशन के आगे जा रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर रहे. देन ऑल्सो जुडिशियरी विल कम इन बिटवीन. ओके, जुडिशियल ब्रांच में सेंटर में आएगा सुप्रीम कोर्ट, स्टेट्स में आएंगे हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ओके, यू शुड कीप दिस इन माइंड. So you see how beautifully Constitution has given us this design where all three branches are independent also and interrelated also, right? So this chart I hope you all remember from last chapter only. Let's start reading judiciary. Read it along with me. Along I will explain you if something is there, right? A glance at newspaper provides you a glimpse of the range of work done by courts in this country. But can you think of why we need these courts? As you have read in Unit 2, we have the rule of law. Okay, Constitution is supreme, there is rule of law. अगर आप अखबार उठा के देखें तो आए दिन आप देखते हैं आज कोर्ट ने ये फैसला दिया, आज कोर्ट ने ये फैसला दिया, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जा रहा है. अंडरस्टूड? आई होप दे आर वेरी इजी लाइन्स, यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग. Now, what this means is that law apply equally to all persons and that a certain set of fixed procedures need to be followed when a law is violated. So, इसका क्या मतलब है? Law सब पे equally apply होगा. That means you and me, like we are ordinary citizens and we are born in India. हमने अगर क्राइम किया है हमें भी वही सज़ा मिलेगी. किसी पॉलिटिशियन ने कोई क्राइम किया है उसे भी वही सज़ा मिलेगी. ओके, एंड जो यहाँ के रॉयल पीपल हैं जैसे गज सिंह वगैरह ने कोई क्राइम किया है उन्हें भी वही सज़ा मिलेगी. सो कानून के आगे सब इक्वल हैं. अंडरस्टूड? या अंडरस्टैंडिंग दिस? सो वी आर वेरी लकी दैट वी आर बोर्न इन इंडिया. To enforce this rule of law, we have a judicial system. सज़ा मिलेगी तो ये देगा कौन? That's why we have this judicial system that consists of mechanism of courts that a citizen can approach when a law is violated. As an organ of government, the judiciary plays a crucial role in functioning of India's democracy. Okay, so democracy को function करने में भी judiciary plays an important role. It can't happen that the government which is in power can do whatever it wants. It can be so supreme कि वो constitution को भी नीचे रख दे और कुछ ऐसे नए laws ले आए. Suppose ऐसा कोई भी नया law ले आए. I'll give you an example. Suppose we are having so many religions. अब कोई नई पार्टी बनी, जैसे ये केस हुआ था. If you remember, you have seen this. और नॉट, ये सीन आपने देखी होंगी न्यूज़ वगैरह में. कोसोवो में, जो कि यूगोस्लाविया है, वहाँ पे दो रिलीजन्स थे. ओके, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल. जैसे इंडिया में दो रिलीजन्स हैं, बहुत से रिलीजन्स हैं. वी हैव हिंदू मुस्लिम्स मेजॉरिटी में. सेम वाज द केस इन यूगोस्लाविया, कोसोवो. वहाँ पे अल्बानियंस थे एंड सर्ब्स थे. दे वर टू रिलीजन्स. अब सर्ब्स जो थे वो ज़्यादा थे, अल्बानियंस कम थे. लाइक इन इंडिया हिंदूज ज़्यादा हैं, मुस्लिम्स कम हैं. वहाँ हुआ क्या? सर्ब्स की गवर्नमेंट जीती. ओके, इलेक्शन से जीती. बट देन व्हाट सर्ब्स स्टार्टेड डूइंग?
दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग अल्बानियंस. उन्होंने अल्बानियंस को कहा, सर्ब्स एंड अल्बानियंस आर टू कास्ट. ओके, उन्होंने अल्बानियंस को कहा इधर यू लीव आवर कंट्री और यू सरेंडर बिफोर अस. हमारा डोमिनियन आप मान लो, जो हम कहें वो आप करो. ओके, सो दिस वाज द केस इन कोसोवो, यूगोस्लाविया. सो दिस में हैपन इन इंडिया ऑल्सो. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत गई है, उसके बाद वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन को भी ना ध्यान में रखे, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजंस हैं, और ऐसा कुछ काम करे, देन जुडिशरी विल इंटरप्ट. सो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉचडॉग कौन है? जुडिशरी है. सो नो पॉलिटिकल पार्टी इवन कैन डू एनीथिंग विच इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरस्टूड? सो दैट्स हाउ इट प्लेज अ रोल in healthy functioning of Indian democracy. It can play this role only because it is independent. Again, ये रोल ये कैसे प्ले करते हैं? Just because they are independent. Suppose again I'll give you one example. सऊदी अरेबिया में क्या होता है? किंग ही चूज करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लोगों को, लेजिस्लेटिव ब्रांच के लोगों को, जुडिशरी के लोगों को. So now उन्होंने ही चूज किया है किंग ने, so obviously all judges will be loyal to the king only. But here in India, this is not the case. There is no king. No one chooses people from judiciary. Okay, so it's independent. कहीं को कोई ऐसा केस आए कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी जजमेंट देना पड़े, then they are free. They are not binded कि ये हमें अगली बार नहीं चुने तो, या any such questions will not come to the mind of judges while delivering judgment. Okay. So your understanding what is being independent means, we'll read it in detail in coming paragraphs also. What does an independent judiciary mean? Is there any connection between court in your area and Supreme Court in Delhi? In this chapter you will find answer to these questions. So till then they have developed curiosity in you. Independent होना मैंने आपको थोड़ा समझा भी दिया है in detail. We'll read it. Understand? So till then they want you all to remain with this curiosity. जो भी questions पूछे हैं. Let's continue reading. What is the role of judiciary? You all know, आम तौर पे आम भाषा में कहें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है जुडिशरी के पास. कुछ भी कभी होगा आप उसे कोर्ट ले जाएंगे. ओके, सो यू हैव फेथ कि आपको फ्री एंड फेयर जजमेंट मिलेगा. लेट्स रीड इट नाउ. Courts take decisions on a very large number of issues. They can decide that no teacher can beat a student, or about sharing of river waters between states, or they can punish people for particular crimes. So you all know now that teachers can't beat students. So this judgment has also been given by courts only. Suppose two states start fighting with river water, है ना? कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो दोनों स्टेट्स में फ्लो करें. सपोज दे स्टार्ट फाइटिंग, कितना पानी तुम्हारा है कितना हमारा है, देन ऑल्सो जुडिशरी कैन इंटरवेंट. ठीक है, वो बीच में आ सकते हैं. दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम. सो ब्रॉडली स्पीकिंग वर्क ऑफ जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फर्स्ट. ओके, इफ यू हैव योर बुक्स ओपन यू कैन अंडरलाइन इट. ओके, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज द फर्स्ट वर्क ऑफ जुडिशरी. What is dispute? कॉन्फ्लिक्ट होना, लड़ाई होना, दैट इज डिस्प्यूट. उसको रिजॉल्व करने का काम है जुडिशरी का. सो दीज टर्म्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. दे आर गिविंग यू आंसर्स देमसेल्व्स. लेट्स रीड द पैराग्राफ. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म for resolving disputes between citizens and government, between two state governments and between central and state governments. So conflicts किस किस के बीच में हो सकते हैं? In last chapter when I was teaching you law making function of parliament, you remember I have told you 3 lists: union list, concurrent list, state list. I have also told you union list में जो subjects हैं उन पे union government will make laws, state list में जो subjects हैं उन पे state government laws बनाएगी, and concurrent list में जो subjects हैं उन पे दोनों laws बना सकते हैं. But at times there can be a conflict कि यूनियन गवर्नमेंट कहे नहीं मेरा लॉ चले एंड स्टेट गवर्नमेंट कहे नहीं मेरा लॉ चले, राइट? सो दैट टाइम यूनियन गवर्नमेंट विल विन. ओके, वी हैव सीन दैट. सो डिस्प्यूट्स कई केसेस में हो सकते हैं. यू कैन सी सिटीजन्स के बीच में भी हो सकते हैं. हम हैं सिटीजन्स, आपने मेरा मकान हड़प लिया या आपने एंक्रोच कर लिया मेरा प्लॉट, देन दैट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन अस. Similarly between citizens and government.
कई बार सिटीजन्स गवर्नमेंट पे भी केस लगा सकते हैं बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स। जैसे रिवर वाटर के लिए दो स्टेट्स लड़ रहे हों, सपोज गुजरात एंड राजस्थान आर फाइटिंग फॉर रिवर वाटर, ओके, सो दिस में ऑल्सो हैपन, एंड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस फाइट कैन ऑल्सो, अगर फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को लेके, देन ऑल्सो जुडिशरी विल come in between and it will solve all these disputes and decision of Supreme Court will be final. Okay, so you should keep this in mind and you all know these things already, right? Next point, next function of judiciary is judicial review. Now what is judicial review? Again मैंने आपको बताया था constitution is supreme. Okay, government can't go beyond constitution. अगर constitution में लिखा है सब equal है तो गवर्नमेंट को भी यही काम करना चाहिए। गवर्नमेंट कांट बी पार्शियल टुवर्ड्स वन रिलीजन एंड इट कांट इग्नोर वन रिलीजन। ओके, कल को ऐसा ना हो जैसा यूगोस्लाविया में हुआ सर्ब्स एंड अल्बानियंस में। ओके, सर्ब की गवर्नमेंट बनी तो अल्बानियंस को बोला कंट्री छोड़ो। ऐसा इंडिया में कभी नहीं होगा कि जो गवर्नमेंट जीतेगी वो कहेगी ओनली 6 विल गेट दिस जॉब, रेस्ट ऑफ दिस कास्ट विल नॉट बी eligible to give exam for this job. So this will not happen. Okay, so why this will not happen? Because constitution is supreme. In a constitution it's written, many things are written, equality is also a point. So the final interpreter of constitution will be the judiciary. constitution में क्या लिखा है उसको final decision कौन बताएगा? judiciary बताएगी. Okay, it has also the power to strike down particular laws passed by parliament if it believes that these are a violation of basic structure of constitution. This is called judicial review. So sometimes अगर parliament कोई ऐसा law बना दे जो constitution को ही violate कर रहा हो, okay, तब judiciary बीच में आ सकती है और कहेगी no, you are going beyond constitution और आप basic structure of constitution का उल्लंघन कर रहे हो। नाउ व्हाट इज दिस बेसिक स्ट्रक्चर? एक केस आया था 1973 में, केशवानंद भारती केस, विल नॉट गो इन डिटेल, बट वहाँ पर ये प्रोविजन आया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। वहाँ पे कोर्ट बीच में आया था और उन्होंने बताया था पार्लियामेंट कांट मेक लॉज ऑन दी सब्जेक्ट्स दैट इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन लोगों ने पूछा अच्छा ऐसा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है? जुडिशरी सेड यस, दिस प्रोविजन इज देयर इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप सपोज वन बेसिक स्ट्रक्चर, आई विल गिव यू एग्जांपल, फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स। वी डोंट हैव टू गो इन डिटेल, जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज आई एम टेलिंग यू दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर तो रहेगा ही रहेगा। व्हाट इज फेडरल स्ट्रक्चर? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कल को पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे कि नहीं, जो यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी वही हर स्टेट में होगा, स्टेट गवर्नमेंट को हटा ही दो। ओके, सो ये लॉ अगर पास भी हो जाए लोकसभा में, राज्यसभा में, प्रेसिडेंट साइन भी कर जाए, बट देन जुडिशरी विल कम इन बिटवीन एंड इट विल टेल यू नो, यू कांट मेक सच लॉज। दो आप वहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेशन से आए हो, बट नो, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज सुप्रीम। ओके, गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग आफ्टर एवरी 5 years. यू कांट मेक सच लॉज कि कॉन्स्टिट्यूशन को ही आप उल्लंघन कर रहे हो। फिर इन्होंने पूछा अच्छा तो बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? तो जुडिशरी ने कहा ये जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे कि आप इस पे लॉ नहीं बना सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, इस पे नहीं चेंज कर सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? जुडिशरी सेड विद टाइम नए नए केसेस आते जाएंगे, we'll keep telling you because we are the final interpreter of constitution, right? Whatever is written in your constitution we'll only tell you and our decision will be final. Basic structure क्या है? जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ओके, उन चीज़ों पे पार्लियामेंट लॉज बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। सो दैट्स दी वर्क ऑफ जुडिशरी कि अगर ऐसा लॉ बन भी गया है तो जुडिशरी बीच में आए, उस लॉ को स्टडी करे, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, एंड उसे कह दे कि ये नहीं चलेगा। ओके, सो जुडिशरी एट दैट टाइम इफ इट बिलीव्स दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वायलेटेड देन इट कैन इंटरवेंस। ओके,
बीच में आ सकती है, तब जुडिशरी. आई होप जुडिशियल रिव्यू इज वेरी क्लियर टू यू नाउ. Okay, extra things of Keshwanand Bharti case, federal structure, that was just for your extra knowledge. This paragraph you have to remember, write this much only and you'll get marks. Understood? Third function is upholding law and enforcing fundamental rights. So you all know there are some fundamental rights, 6 fundamental rights. Earlier there were 7. Then there was an amendment कि right to property को हटा दिया. Okay. और now we have 6 fundamental rights. You have read this in your junior classes also. We'll revise it, don't worry. So third function of judiciary is upholding law and enforcing fundamental rights. You all know in other cases, civil cases, criminal cases, first you have to go to district courts, then if you are not satisfied, high courts, then Supreme Court. But अगर आपको लगे मेरी फंडामेंटल राइट्स मुझे नहीं मिल रही, देन यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. दिस प्रोविजन इज ऑल्सो देयर अंडर आर्टिकल 32. जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज अगेन. सो सी हाउ जुडिशरी इज सो इम्पॉर्टेंट. नाउ देयर इज अ केस given in your books. We'll take it tomorrow and then we'll see what judiciary does. Till then, just keep revising, keep listening to it again if you have any doubts, and give it a read again from your books. Okay? That's all for today. Thank you. Take care.